was like, you know what, let me just start blogging. Let's see क्या होता है. मेरी पढ़ाई तो साइड में थी, and my entire existence did not depend on whether that blog works or not. No. So I was like, I have nothing to lose. आपके फ्रेंड जहाँ कंप्लेन कर रहे हैं, मर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ आप मजे से पढ़ रहे हैं और आपको मार्क्स भी आ रहे हैं. जस्ट लाइक थ्री इडियट्स का कैरेक्टर रंचू, ठीक है, वैसी आपकी लाइफ रही और आपने इसको लिख दिया. ये लिखने के भी जो बेसिक्स है वो एक ही है, बस लिख. Just start like Vinisha ma'am. Just take things into your hand. आज का जो पॉडकास्ट है वो हमारे स्टूडेंट के इंस्पिरेशन से हम ये कर रहे हैं बिकॉज एक स्टूडेंट है मान्य करके, थैंक्स टू हिम, जिसने एक स्टोरी लिखी है, काइंड ऑफ मर्डर मिस्ट्री और समथिंग ऑन बेस ऑफ जॉन ग्रीन्स 48 लॉज ऑफ पावर. तो जब उसने स्क्रिप्ट लिखी तो आई जस्ट मेंशन दैट माय वाइफ विनीशा मैम इज was a content writer and she's also a blogger and a writer and an author. So he was like, please take her suggestions. 2 chapter लिखे थे उसने और मैंने बोला यार you should think about becoming a writer. बोलते उसमें पैसे मिलते हैं. So अभी 2024 में ये बच्चे ने genuinely पूछा तो मुझे शौक लगा कि हाँ भाई मिलते हैं. बोलते तो उसको एज अ प्रोफेशन हम अपना प्रोफेशन चुन सकते, बना सकते हैं. I said yes. सो वो सेशन में मैं पढ़ाने की जगह पे मैं लिटरली बच्चों से पूछने लगा कि आपके दिल से आते हुए प्रोफेशन कौन कौन सा है. तो उसमें से बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रोफेशन की बातें करते हुए मिले. एक ऐसी बच्ची है जो क्रिकेट में आगे बढ़ी बट उसका ड्रीम है सीए बनना, उल्टा है. और एक बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिले जिनको राइटर बनना है बट उसको लगता है कि राइटिंग विल नॉट मेक मनी और अ फ्रूटफुल करियर. जैसे हम पढ़ाई की बातें करते तो वही होते हैं ना, कि पैसा कितना मिलेगा. सो आपने भी आपकी राइटिंग की जर्नी व्हेन यू वर इन 12th और 13th. I was entering FY BCom 13. हाँ, और लिखने की जर्नी की That's when I शुरुआत started, yes. Yeah, so please share your journey as a writer, blogger, content writer. The journey started on a whim. Okay. कि देखा जाएगा, kind of a trial and error. And इसमें ये भी था कि even if it turns out to be an error, I have nothing to lose. True. ना मेरे कुछ पैसे लग रहे थे, ना किसी और के कुछ पैसे लग रहे थे. So it was like I planned to start a blog based on our discussion where you noticed that मुझ में से दिख रहा था that I'm more of a words person rather than a numbers person. So I thought of just giving that a shot. That was like, you know, chala to chala, and this can be a platform where I get to voice my thoughts, voice my opinions. When I started blogging, it was more from a creative, expressive perspective. So वही thought कहीं ना कहीं घूमते I was like, you know what, let me just start blogging. Let's see क्या होता है. वहाँ पे मेरी पढ़ाई तो साइड में थी, and my entire क्या बोलते हैं existence did not depend on whether that blog works or not. So I was like, I have nothing to lose. चला तो चला, नहीं चला तो very good, I'll figure out something else. True. So that's how I started. And I slowly started recognizing the power I held. And that was more from you know, in a way of understanding के इतना influence कर सकता है ये, like शब्द जो चीज है, it can influence and empower so many people. And this was something I was thinking about today also while I was writing about my journey so far. That somewhere it hit a chord with people, not because I wrote so positive and everything, but somewhere, you know, I wrote in a very childlike manner. And somewhere it connected with their inner child. True. So because I found that connecting setup, that connecting ground, that foundation, I realized that is why the blog took up. True. Within 6 months, I had a readership of around 6,000 to 7,000 people. And I hadn't even turned 18 at that point. So वहाँ से शुरू हुआ. And then when it turned to, you know, building a professional career out of it, it was just out of a demand and supply thing, that there is a demand for this skill and I have that supply. I can be a vendor of that skill. So खाली वो meet करने के लिए, you know, I started that. And it was a pretty good stint. 3 साल 2020 से 2023 I worked as a marketer. True. And
it hardly took time for it to pick up. It was just about showing up every day and figuring out कौन से industries के लिए लिखना है, किसके लिए नहीं लिखना है. Correct. So when you know what you want to write, when you know which industries to write for, somewhere setting that first step, that first foundation becomes easy. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने लिखा नहीं होता तो आज हमारे पास लैंग्वेज ही ना होता. Yeah. है ना? वो लिपि में जो स्क्रिप्चर्स अभी भी अवेलेबल है, रीजन लिखा है. So हम कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखने से पहले कोई तो लिखे तो दिखे ना. Right? So I'd love to request जिस किसी के भी पास ये पॉडकास्ट पहुंचे कि अगर लिखने का मन हो तो लिख दो. हमारे पहले के पॉडकास्ट भी जितने भी हुए हैं उसमें भी विश्वास रानी सर कहते हैं कि कुछ आर्ट क्रिएशन है तो बना के रखो, उसके बाद साल 10 साल उसको इम्प्रूव करते जाओ. करेक्ट. सो जैसे 2013 या 14 के इर्द गिर्द वो सीड किसी ने मेरे ब्रेन में घुसा के चिराग यू कैन टेक सेमिनार. करेक्ट. तो मैंने हाँ बोला, अपॉर्चुनिटी ली और एक ही रात में द एबीसी ऑफ लर्निंग का जन्म हुआ. राइट. क्रेडिट गोज टू भावेश दनेशा, उन्होंने ये सीड डाला था. और मेरा कांदिवली वेस्ट की एक स्कूल के अंदर सेशन था और वो इतना बहुत बढ़िया गया था, बहुत अच्छा लगा था. तो वहीं से उसके बाद सेशन मिलते गए, वो कैप्सूल 3 घंटे का मैं लेते गया. सपन परीख सर के वहाँ पे लिया, उन्होंने सजेशन दिया कि पीपीटी थोड़ा चेंज करो. तो वहाँ से एक पीपीटी को और एग्जैजरेट करने के लिए मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड ने मुझे मदद की. देन आई हैव टेकन योर हेल्प. वो हेल्प के बाद वी स्टार्टेड शेयरिंग द सिमिलर पैशन टुवर्ड मोटिवेशन. तो ऐसे ही द एबीसी ऑफ लर्निंग का जन्म हुआ. और लिखने का ड्रीम मेरा भी था और आपके पास पावर था, आपके पास वर्ड्स की क्षमता है. सो इन द वेरी सेम, इफ यू फील कि आपके पास क्षमता विचार की है तो लिखने वाला रख दो. मतलब लोगों को ये नहीं पता है ना. Ghost writing is so somewhere I was just thinking about when we decided कि चलो ये podcast करना है. For a moment I was thinking कि यार ghost writing क्या होता है, how to build a career as a content writer. You have numerous videos on the internet and somewhere मैंने भी उसी से सीख के अपना setup पूरा बनाया है. And whatever people will hear in the podcast might not necessarily be new. True. So for a second I was like, यार ये करना भी चाहिए कि नहीं? But then I realized कि नहीं, मैंने सुना हुआ because I knew exactly where to search for it. Correct. But not everyone would. So इस हिसाब से ghost writing भी ऐसा होता है कि like you have a thought. और तुम्हें लगता है कि यार नहीं ये सबको तो पता होगा ही. But there are still so many people who do not have any idea or any access to whatever you want to share. So bindas, go for it. जैसे what you and I did. So the entire ghost writing का setup works on the basis of, let's say if a person A has an idea, he has an expression, कुछ create करना है, but articulation का अगर power नहीं है, which means उनको वर्ड्स में कैसे ढालना है इन अ वे के रीडर अच्छे से समझे और मास तक पहुंचे. अगर वो खुद वो गैप ब्रिज नहीं कर सकते, सो यू हायर समवन एंड आस्क देम टू राइट इट फॉर यू. दैट इज व्हाट घोस्ट राइटिंग इज कॉल्ड. एंड घोस्ट राइटिंग इसलिए बिकॉज इन दिस केस द एंटायर क्रेडिट गोज टू द आइडिया वाला एंड नॉट द राइटर. सो इफ ABC of Learning would have been a ghost written book, it would have only been written by Chirag Vinod Kotadia. Although the words have been mine, मेरा नाम वहाँ पे नहीं होता. That is how ghost writing works. True. And it's picking up big time now because the kind of content that is available today. धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि YouTube and Instagram में कितना power है. कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं just because of the reach that these platforms offer. जिसके वजह से people are out and about sharing everything. बट अगेन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बिठाने के लिए जब उनको जरूरत पड़ती है, सो दे हैव टू टर्न टू राइटर्स. सो धीरे धीरे नीड एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा बढ़ रही है उनकी. अग्री. सो बच्चे लोगों से कहना चाहेंगे कि और माता पिता से भी, क्योंकि ये लिखने का ड्रीम सिर्फ बच्चों का नहीं, माता पिता का भी हो सकता है, कोई शिक्षक का भी हो सकता है, कोई भी लिख सकता है. तो लिखने की शुरुआत जैसे हम ABCD लिखते हैं, वो लेटर से शब्द बनते हैं, शब्द से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंस मतलब वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ और पैराग्राफ से आपकी कहानियां बनती जाती हैं.
और जैसे ये हो गया, इसका स्कोप हर जगह, आपने कहा कंटेंट, वो लोग खाली एक लाइन भी लिख दे जो कैची हो तो ब्रांड के लिए इतनी महत्व की हो जाती है। व्हाट वी कॉल टैगलाइन, करेक्ट, है ना, टैगलाइन, यस, साउंड भी बन जाते हैं यार, ये जैसे Yeah. ब्रिटानिया का है, टिंग टिंग टिडिंग, Yep. ये लिखा गया है, जिंगल्स लिखे जाते हैं, गाने लिखे जाते हैं, कौन कौन से शब्द से कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या इंस्पिरेशन लिया जाता है, नोबडी You never know. सो Yeah. लिखने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो वुड लव टू रिक्वेस्ट कि यार सोचना शुरू करो कि अगर लिखने की क्षमता है तो लिखा करो, और बिना डरे लिखा करो, विनिशा मैम की तरह, राइट? हाँ, बहुत जरूरी है आज। It actually took me a while to get there. अच्छा, So when I started, in fact, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि how would this be received? हाँ, How would people judge this? हाँ. इस पे क्या feedback मिलेगा? और इस grammatical aspect छोड़ो, हाँ. even the conceptual part of it, कि अरे वो repetitive तो नहीं हो जाएगा, अरे ये ऐसे तो नहीं सोचेंगे. हाँ. So there's constantly a lot of thought that goes in हाँ. based on how it would be received. But it's about like डरना है, it's okay. डरो, no problems with that. Don't let that fear or that hesitation hold you back. True. And somewhere I feel कि अगर मैंने वो hesitation में in a way surrender कर दिया होता, I don't think I would have been able to run a blog for 9 years. I know थोड़ा of late sporadic हुआ है, but It's still, it's still existing. how many blogs are there अगर approximate गिने जाए तो? 30-35 plus तो आराम से, और more एक than that actually. एक ब्लॉग में कितने वर्ड्स होंगे? At least 600. है ना? Wow, 18,000 words. Pretty much, हाँ. So 18,000 word का content. And वो भी published है. There's so much that has not been published because it's kind of a dear diary part which just stays with between my pages and me. So one part is content consumption, जहाँ पे पढ़ के हम बस we are just taking in information. दूसरा है reflecting on it. That I feel that reflection part is the most important. Because उसी reflection से फिर तुम्हारा खुद का intake निकलता है, तुम्हारा खुद का understanding निकलता है, which then you can articulate and create something out of it. True. And this hesitation part, I feel probably stops most of these writers because one, all the wannabe writers, they are all readers by default. वो readers है इसलिए they want to be a writer. True. So, and because they have read such good books, wow, they are constantly comparing themselves with the best. So उनके दिमाग में ऐसा है कि if I want to write a thriller or a crime fiction, I have to be as good as Sidney Sheldon or a Dan Brown or an Agatha Christie, तो ही अपना कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं. But हजारों में से कोई एक ऐसे निकलता है, but that is also after ages of work. सिडनी शेल्डन के हमने इतने सारे काम देखे हैं, इतने सारे बुक्स देखे हैं, but there's so much that we haven't seen. True. And maybe that part that we haven't seen might be much worse than what we've written. And there's only one way to do it कि करके देखो. True. And आपको पता था हुसैनी दवाला सर, you know, right? So हुसैनी दवाला सर belong to theaters and उन्होंने एक कहानी बताई थी कि वो क्लास अपनी जब इंस्टीट्यूट थी क्रिएटिव क्लास, वहीं से वो शायद भेल खाने गए थे. Okay. So जहाँ भेल खाने गए तो भेलपुरी का जो कागज था ना, उसमें एक उनको स्क्रिप्ट मिला. वो स्क्रिप्ट से उन्होंने ड्रामा बनाया, वो ड्रामा फ्लोर पे गया, मस्त हिट भी हुआ, और जो राइटर थे उनको इन्होंने लिखा कि ये हुआ, और हुसैनी दवाला ने वो उनकी कमाई का एक हिस्सा भी उनको भेजा. उन्होंने थैंक यू नोट में वही पैसे सेम वापस भेजे, बोला बस ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज. सो हमने भी जो किताब लिखी द एबीसी ऑफ लर्निंग, ऐसा ही उद्देश्य था, राइट, कि हम लोगों तक पहुंचे. और मुझे आई लव टू थैंक परेश गोसर. जब मैं किताब लेके उनके पास गया ना, तो उन्होंने पूछा चिराग इसको गुजराती में बोला, अने वेचवी छे के वहेचवी छे, so you would love to sell or you would love to distribute. So I wasn't having answer, I was like both. अगर कोई अच्छा रीडर है तो उनको हम दे देंगे, और अगर कोई कदर करने वाला तो वो पैसे भी दे देता है. और ऐसे लोग मिले हैं, राइट. जैसे हम एक इंसिडेंट बार बार रिपीट करने का मन करता है. आप ही की बिल्डिंग में एक लड़की को हमने बुक गिफ्ट दिया था, एंड शी वाज सो फैसिनेटिंग. 16 साल की लड़की वो आके बुक को ऐसा मस्त उसने ये किया, और
स्मेल लिया तो ऐसा गर्व हुआ कि हमने अपना बुक पब्लिश किया और पेपर बैक रखा, नहीं तो इसको ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते थे, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी हैव डन कि आज पढ़ने वाले 16 साल के भी रीडर्स हैं। Yeah. दूसरा ये डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, यानी हम मिलने गए, उन्होंने एक एक पेज घुमा घुमा के 108 करके पेज की किताब विद इन 10-15 मिनट्स उन्होंने कुछ मतलब हमारे सामने ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने बुक ली एंड एक बहुत स्टाइलिश वे से एक एक पेज घुमा रहा था। आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत अच्छा लगता है ना। आई एग्री विथ यू कि जो रीड करता है ना वही लिख पाएगा। हाँ, राइट, because it's as simple as, okay, if you're looking at choreography or singing, how would you understand the nuances of a song or the rhythm or the beats? जब उतना सुनते जाओगे या उतने परफॉर्मेंस देखते जाओगे तभी समझ पाओगे ना, अच्छा ये करना है ये नहीं करना। So how would you know how to articulate when you haven't seen it? It's as simple as तुम सिखा रहे हो लोगों को बिजनेस करना, बट तुमने कभी बिजनेस अगर रन नहीं किया तो क्या सिखाओगे? Agree. So reading is the prerequisite of writing. And there are so many who vouch the same solution to even get out of a writer's block. There's this thing कि जहाँ पे creatively कोई juice flow होता नहीं है, and you're like, you're stuck. वो backspace पे ही आगे आगे बढ़ ही नहीं रहा है. So the only way to get out of it is to read something. True. It could be related to the work that you are on, या तो कुछ और, but पढ़ो. So लिखना, I must say कि I agree, prerequisite of writing is reading. और बिना reading के भी लिखना थोड़ी बहुत चीजों में शुरू हो सकता है। अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं, करेक्ट? एंड देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ है ना लिखने से बहुत बदली है। मतलब मैं अच्छा राइटर नहीं हूँ, बट मैंने जो भी मेरे लिए लिखा है या ड्रॉ किया है वो होते हुए मैंने देखा है। जैसे आपको पता होगा ब्रिगेडियर सुशील बशीन जी के सेशन में से मैंने जब बुक का लिखा था ना तो उसमें येलो और रेड कलर थे। आपने अगर याद होगा तो आपको, तो वो विजन आज फुलफिल हुआ, रेड और येलो कलर में अपनी किताब आई, राइट? और दूसरा, इस साल के लिए मैंने लिखा था कि मैं इतनी इवेंट्स करूंगा, 45 जितनी इवेंट्स मुझे करनी थी इस साल। सो 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, आई एम ऑन 39th इवेंट, राइट? सो लिखने से लाइफ बदलती है, आई फील। सो लिखना इज मस्ट, एंड लिखा हुआ मुझे चाहिए कि लोगों तक पहुंचे, राइट? सही मायनों में पहुंचे, क्योंकि नहीं तो लाइफ एकदम ड्रामेटाइज हो जाती है कि यार लोगों के पास कितना है व्यक्त करने को। एक गुजराती में मैंने चीज लिखी थी कि विचार तो घना आवे छे, એવું તે શું કરું કે સુવિચાર થઈ જાય, कि विचार तो बहुत आते हैं, ऐसा क्या करो कि वो सुविचार हो जाए। सुविचार तब बनता है जब वो विचार अपने पास ना रखा जाए, उसको कोई भी माध्यम के द्वारा व्यक्त किया जाए। चाहे आप अपने you can tell your story also. How people used to feel कि यार इतना लंबा लिखती है, and I used to tell कि this is what the thing is. They were considered as a big thing because they were attracted towards picture, but when I saw the content on your Instagram and Facebook, I used to tell that this is who you are, yeah. So there are two parts to it. One is I wrote just to express, not to get likes. True. Not to impress. Not to impress, and not to get a kind of reach. So whenever my clients came to me के ये content piece में इतने ही likes मिले हैं, या इतने ही followers बढ़े हैं, या यही हुआ है, so all of it is a byproduct of what you actually write. True. The ultimate intention is to just express. So when you're talking about an individual, expressing whatever is either going on in your mind, और अगर तुम fiction लिखना चाहते हो तो वो storytelling. So expression, storytelling. And brand के element में consider करें तो kind of a mixture of both, so that it is being connected with the end consumer, जिनको यहाँ पे फिर लगता है कि ब्रांड सिर्फ एक फसाड नहीं, एक एक्चुअल इंडिविजुअल है, ब्रांड के भी इमोशंस है। सो वो जब धीरे धीरे दिखेगा, कॉन्स्टेंटली दिखते जाने के बाद कुछ कन्वर्जन आएगा, या कुछ लाइक आएगा, या तो कुछ फॉलो बढ़ेगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप देमसेल्व्स जस्ट बिकॉज दे थिंक अरे इस पे इतने लाइक्स मिलेंगे नहीं, बट यू ऑलवेज स्टार्ट विद a photo which has 0 likes or just 1 like or 5 likes. Over weeks or over months it will grow eventually, no? True. Consistency, absolutely. So मेरा भी यही था कि let's say birthday wishes है, so it was just about pouring my love and adoration, जिसके लिए भी मैं वो लिख रही हूँ,
and somewhere that gave me that realization कि okay, if I'm this good in expression, and because I felt a little distant from my generation based on the way I looked at the world and everything, and there were so many questions around me कि अरे how are you so happy all the time, how are you this all the time. So I was like, you know what, let me just start writing about it. Wow. And that was the beginning. Wow. So everybody should do it, right? हाँ, मैंने तो तुम्हें like see, there are two, अभी blogging की बात करें तो there are two perspectives of blogging. One is kind of like me, जो थोड़ा self help या dear diary types होता है, जहाँ पे what's you the are word? Dear diary. dear, हाँ, What's that? जैसे जो डायरी पे लिखा है उसी को फिर तुम पब्लिश कर रहे हो. अच्छा, okay. So that is you're just outpouring everything that you have in your mind, and उसी को unfiltered, unhinged, you're just publishing it online. Vomit draft, right? हाँ हाँ. And दूसरा है converting it into a story, writing fiction. Now that also has like a lot of subgenres in it. True. So ये दोनों perspectives है. So you decide which connects the most with you. So इसमें of course you need a solid hold on vocabulary, जिसके लिए you need to read, so that you understand कि क्या क्या अलग styles होते हैं to share stories, कैसे wordings तुम्हें use करनी है, plot कैसे develop होता है. So you know, a lot of times जो ऐसे जो creative storytelling जो बनाना है वो पढ़ के you can analyze के okay ये character को ऐसे describe किया है, ये scene को ऐसे visualize किया है. So you decide कि okay अगर मैं ऐसे लिखती तो या मैं ऐसे लिखता तो मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे बताता. And people should think अगर नहीं पढ़ना ठीक है, it's okay. अभी audio books भी है. हाँ. है ना? Yeah. Even by listening. Yes. I'd love to share one thing. जब हम सेशन लेते थे, मैंने पहले सेशन लिया तो उसमें बहुत टाइम पहले मैं एक हाइपोथेटिकल एक्टिविटी लेता था जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. वो हाइपोथेटिकल एक्टिविटी कुछ इस तरह की होती थी कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी कि आपको 10th में 92, 93, 95% आए बिकॉज आपने हार्डवर्क किया और आपने मजे मजे में मैथ्स में अच्छा स्कोर कर दिया, साइंस में अच्छा स्कोर कर दिया, हिस्ट्री में आपके फ्रेंड जहां वो कंप्लेन कर रहे हैं, मर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वहां मजे से पढ़ रहे हैं और आपको मार्क्स भी आ रहे हैं. जस्ट लाइक 3 इडियट्स का कैरेक्टर रेंचो, ठीक है, वैसी आपकी लाइफ रही और आपने इसको लिख दिया, आपकी बायोग्राफी में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया. अभी आपकी लाइफ ने मस्त आपने गुजार दी और आप मर गए, ठीक है, और आपने एक किताब लिखी ना तो कौन सा ISBN नंबर था तो किताब भी अवेलेबल थी, ऑनलाइन था. आपकी चौथी पीढ़ी आई जो एकदम आलसी, जिसको कुछ नहीं करना है, वो 10वीं तक पहुंचने भी नहीं वाली पर धक्का मार मार के 10वीं तक उसको पहुंचा दिया. अभी उसको अचानक से आपका फोटो और नीचे आपकी पढ़ी हुई किताब मिल रही है और न जाने क्या मन हुआ और वो किताब लेके ये बंदा पढ़ रहा है. अब पढ़ते 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 रात को बाहर ही नहीं आया, सुबह वो 4 बजे पूरी फैमिली को उठा के बिठा के बोल रहा है आई एम स्कोरिंग 98%. बोलते पास हो जा. बोलता नहीं आई स्कोर 98%. बोलते ये कहाँ से आ रहा है? बोलते आप ही ने तो ये फोटो के नीचे बुक रखी है, हमारे पूर्वज, ये बताएगा कौन मुझे? अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकती. दैट्स व्हाट बुक डज. कि अगर बुक में लिखा है कि इसके पास कुछ नहीं था तो इसने इतना किया, तो थॉट आना चाहिए ना मेरे पास तो कितना सारा है. धीरूभाई अंबानी का कोटेशन है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो इतना कर पाया, तुम पढ़े लिखे हो तो तुम कितना कर पाओगे. इसीलिए दोनों बेटों को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाया है. सी माँ बाप पढ़ा रहे हैं ना, उसका मतलब ही है. सो यहाँ पे और एक चीज है कि जब पढ़ने बोला जा रहा है तब आप तथास्तु बोलो कि तो आपको लोग पढ़ने बोल रहे हैं, मीन्स यू आर अलाउड टू रीड एवरीथिंग. हियर आई अलाउड टू कोट हेमंत तन्ना, ट्रस्टी ऑफ बालभारती कॉलेज. उन्होंने एक मस्त चीज बताई थी कि जब वो टीनेजर थे, छोटे थे, तब उनको कुछ भी चीज देखनी हो ना, फिल्म या कुछ भी, तो रिस्ट्रिक्शन था, उस पे पेरेंट्स का कंट्रोल था कि तुम यही देखोगे, ये नहीं देखोगे. पर बोला पढ़ने पे कोई कंट्रोल नहीं था. तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, यू कैन बाय एनी डैम बुक, यू कैन आस्क फॉर एनी डैम बुक, एंड दैट मेड हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. आज जो भी मैं हूँ अच्छाई से, ठीक है, बुरा मेरा ही क्रेडिट. अच्छाई में हेमंत तन्ना जी का बहुत बड़ा हाथ है. उन्होंने जो फिल्म से लेके बुक से लेके चीजें रिकमेंड की, मैंने पढ़ी और उसमें से सीखा और अब मैं आगे बढ़ा हूँ. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट करियर के जो भी लिख पाता है, बेसिक भी लिख पाता है, तो उसके लिए क्या क्या करियर हो सकता है? Any field that you are interested in. So considering that you come from a management background, so let's say you have an inclination towards writing, but आपका qualification है management.
So one way to go about it is getting in touch with management consultants. So business growth को लेके it is such a vast topic. I know अब तक बहुत सारे blogs लिखे गए हैं, but still that is still not enough. True. उसको अच्छे से अगर तुम channelize करो and stick to a certain area कि geographically या तो economically के इसी level के management consultants के साथ deal करना है. So you start writing for them. Correct. Because 10 different solutions or 50 different solutions that the world doesn't. True. So there's always some solution that we can offer based on the industry that you are either qualified in or are deeply interested in. अब जैसे मैं qualified technically थी finance में, अभी halfway to psychology also. But while I was still kind of just qualified in finance and accounting, I was still writing for travel as well and psychology. So I used to write for mental health professionals. I used to write for travel agents. This was because एक तो interest था. Interest था तो उसके वजह से मैं research भी ज़्यादा करती थी. So there is one part जहाँ पे interest so that you're able to write properly and you are क्या बोलते हैं जो लिख रहे हैं वो तुम्हें अच्छे से पता है. So because I'm not interested in technological fields, उसमें मैं घुसी भी नहीं. Correct. Although वहाँ पे पैसा है. I was like नहीं उतना ज़्यादा स्कोप पे मुझे नहीं करना because I know कि I won't be able to contribute 100% of my knowledge because वो limited है मेरे लिए. So choosing those fields पहले वो. दूसरा उसमें रिसर्च करो कि कौन सी चीजों पे आंसर्स दिए हुए हैं और कौन से अनटच्ड है. Then उसके बेसिस पे you start meeting people from those industries. जैसे मैंने बोला you meet management consultants and tell them that you have the skill and you have this knowledge. You can sell both of these for their brand growth. Wow. So ऐसे management से कर सकते हैं. You can do it for editing. You can do it for any given industry that you are into. And शुरू करने के लिए all you need is even if you come from काफी क्या बोलते हैं लोअर स्ट्रैटम ऑफ द सोसाइटी से अगर आ रहे हो जहाँ पे सिर्फ फोन है तुम्हारे पास, लैपटॉप के भी पैसे नहीं है तो भी कर सकते हो. फोन पे टाइप करो, कम लोड लो सो दैट उतना ज्यादा टाइम ले पाओ आप लिखने के लिए. बट फोन से धीरे धीरे शुरू करो. वहीं पे पूरा रिसर्च होता है. इंटरनेट तो पूरा फोन पे भी चलता है. एंड यू हैव अ डायरी एंड पेन तो पूरा वहाँ पे लिख दो एंड देन यू कीप टाइपिंग इट ऑन द फोन. सो दैट इज हाउ यू कैन बिगिन. एंड दिस इज लाइक एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए. कोर्सेज में भी इन्वेस्ट करने की एट द इनिशियल लेवल जरूरत नहीं है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब जहाँ से मैं ही सीखी. सो मेरा कोई बीएमएम का बैकग्राउंड नहीं है. बीकॉम है इन विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग बट अगेन दैट्स वेरी थियोरेटिकल एंड वेरी ट्रेडिशनल जो मैंने पढ़ा. आज के जमाने में जिस तरह से मार्केटिंग चलता है एंड जो दिमाग लगाना पड़ता है वो मैंने यूट्यूब से ही सीखा है. So figure out which industries that you are interested in. 5-6 select करो. उसमें धीरे धीरे अपना portfolio बनाना शुरू करो. So portfolio is basically writing blogs on your own. बना के वो ready रखा है. No one is paying you for that. Because आपके सामने का अगर कोई prospect आ रहा है and if they want you to write for them, उसके लिए they need to see some kind of proof. तुम्हारी स्किल्स देखनी है. तो पोर्टफोलियो हेल्प्स विद दैट कि तुम्हें वो पहले ही तुम उनको दिखा रहे हो कि देखो तुम्हारे इंडस्ट्री में मैं ऐसे दिमाग चलाती हूँ. सो पोर्टफोलियो बना के रखो एंड देन यू मीट पीपल. सो यहाँ पे टीचर का भी रोल बहुत बड़ा आता है. Yes. मुझे लगता है कि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि आज जितने भी टीचर्स है वो फेक है. क्यों? क्योंकि वो कुछ खुद एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे पर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा सिखा रहे हैं. राइट. मुझे गर्व होता है कि मैं फेल एंटरप्रेन्योर हूँ. मैंने क्रिएटिव क्लास 2014 से 2020 रन किए, बंद कर दिए, बट आज भी वो फील्ड में मेरा नाम है. आज हम गर्व ले सकते हैं कि हमने द एबीसी ऑफ लर्निंग 108 पेज की लिखी और उसको पब्लिश करने का बहुत यूनिक तरीका ढूंढा कि हमने सुबह शादी के गुरुद्वारे में और शाम को इंस्टेड ऑफ रिसेप्शन वी हैड अ बुक लॉन्च एंड वी सोल्ड 110 अराउंड बुक एंड विद इन 6 मंथ हमने कुछ 1000 बुक्स भी बेच दी थी. उसके बाद वापस से लॉकडाउन कंटिन्यू और वो एक शिक्षक है और उस शिक्षक ने ना एक चेक पे लिखा, ये आपको पता होगा, वो चेक पे लिखा 1 मिलियन और जहाँ सोते थे ना ऊपर लगा दिया. तो 1 मिलियन आएगा कहाँ से उतना नहीं सोचा पर पता था कि 1 मिलियन आएगा.
सो नहाते नहाते वो 1 मिलियन का सोच वो नहाते नहाते भी ला रहे थे, और वो Yeah. नहाते नहाते उनको विचार आया हाँ. कि मैंने कुछ लिखा है, मैं पब्लिशर से मिलूं तो सही। वो प्री स्कूल या मेरे ख्याल से प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तो उन्होंने जो भी लिखा था ना वो पब्लिशर से मिले, और उन पब्लिशर के वहां से फीडबैक आया कि प्लीज कलेक्ट योर चेक ऑफ सम अराउंड मिलियन ओनली, दैट पर्सन or that teacher's name is Jack Canfield, right, The Secret, Yeah. right? See, this is what the point is कि लिखने से लाइफ बहुत, जेके रोलिंग, राइट, J.K. Rowling. हमने नेटफ्लिक्स पे कहा उनकी एक पूरी If I'm स्टोरी not wrong, देखी, Netflix, yeah. राइट, क्या स्टोरी है, पेशेंस वाली Hmm. स्टोरी है यार, क्या लिख, That is pretty much every writer. हाँ हाँ Whether you become as huge as the writer of Harry Potter or The Secret or whatever it is. अभी इसी बुक को हमें almost 2 साल लगे बनाने में. Before we decided to get into self publishing, हमने भी कितने सारे publishers से मिलके ये किया. And after a point we were like, you know what, let's just take matters into our own hands and do it. ये छोड़ो, even writing a blog, I guess every creation of art is a matter of tremendous patience. True. And somewhere I would ये मैं especially highlight करना चाहूंगी the ones who want to become authors. What I have observed and kind of noted is that not every single author is just an author. They always have some or the other additional stream of income. Okay. उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे योर रॉयल्टी इज प्रीटी मच अर्निंग यू योर ब्रेड एंड बटर, उसके लिए एक तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए एंड काफी ज्यादा टाइम एंड पेशेंस लगता है. सो इफ यू हैव दोस ड्रीम्स, वेरी गुड, डोंट लेट देम गो, बट डोंट कीप दैट एज योर ओनली ड्रीम. सो उसके साथ साथ जो थोड़े ज्यादा सस्टेनेबल ऑप्शंस है, जैसे कंटेंट राइटिंग है. कंटेंट राइटिंग हैज जस्ट अबाउट स्टार्टेड पिकिंग अप, स्पेशली जब से लॉकडाउन लगा है. दैट गिव द सेकंड बूस्ट. सबसे पहला बूस्ट आया जब जियो आया, बिकॉज जियो मेड इंटरनेट ऑल द मोर एक्सेसिबल. आज इतना सारा कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग एज अ मार्केटिंग स्किल इज एक्सपोर्टेड, because India के houses या तो they are very traditional and go to your general social media agencies or digital agencies, and बाहर branding का थोड़ा ज्यादा ही push मिलता है even from small and medium industries. True. And उतना ज्यादा पे है. Probably they understand. हाँ. Their value. Yes. And India का business भी अभी भी काफी traditionally ही चलता है. We are not as heavy on digital marketing as we are on, say, word of mouth or core relation building. वहाँ पे उस लेवल का इंटरनेट ब्रांडिंग का अलग ही बॉल गेम है. So you look at that. उसमें अपना कुछ क्रिएट करना शुरू करो, जहाँ पे तुम अपने ड्रीम बुक एज एन ऑथर पे काम करते करते तुम साइड में ये भी काम कर रहे हो, so that you are sustaining, there's something coming into your pocket, you are feeding your family, you have a roof over your heads and everything, उसका ध्यान रख रहे हो. दूसरा, if you are interested and capable, script writing, because हर एक चीज के लिए आज एक स्टोरी चाहिए. सीधा सीधा ये ले लो या ये मूवी देख लो काफी नहीं है. Everything needs a script, everything needs a story. So being able to write that, being able to conceptualize that, and kind of bring it all into action, that is also picking up big time. True. So these two are careers जहाँ से you can still look at के चलो consistent income आ सकती है. इसको build करते करते then you write 2 books, 3 books, 5 books and then sit on that royalty. OTT is also a wonderful platform जहाँ पे भी writers की जरूरत होती है, advertisement में जरूरत होती है. Yes. यहाँ तक कि अभी घर पे कोई छोटा सा प्रसंग हो, उसमें भी एक राइटअप बना के भेजना पड़ता है, राइट, जहाँ पे आपको और मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल हुई, क्योंकि हमारी फैमिली वाले जानते ही, बिकॉज वी राइट, तो हमें कुछ भी प्रसंग हो तो ऐसा कोई ये भी I guess that's also because I'm sure we are not the only ones. We are आपके फैमिली में you are the most expressive, मेरे फैमिली में I am the most expressive. So similarly जब कुछ डिंडोरा पीटना है, of course they'll come to the person who is expressive so that वो डिंडोरा का मजा भी आए ना. हाँ. So यहाँ अगर आप अपने बच्चों के टैलेंट जानना चाहते हो तो ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दो उनको. Absolutely. आपके घर पे कोई छोटा सा प्रसंग है तो उनको बोलो कि इसका कंटेंट बना के दे, इसका वीडियो बना के दे. अभी हमने जिसका काउंसलिंग लिया, राइट, उसके टेक्नोलॉजिकल सेंस बहुत स्ट्रांग थी. कैसे पता चला? तो उसकी बहन ने बोला कि मेरी शादी का जो एक बेसिक कार्ड बनाना था, ई कार्ड जैसा, तो उसमें द चाइल्ड वाज पुटिंग एफर्ट्स बट फादर वाज इम्पेशेंट
कि Correct. रहने दे ये सब Correct. इज्जत जाएगी वो, पर उसने 2 दिन लगाए ऑनलाइन देख देख के सीख के किया। सी Hmm. दैट इज व्हाट द थिंग इज, हम सबको भी एक चीज पता होनी चाहिए कि हम अपनी स्क्रिप्ट के राइटर हैं, और Hmm. अपनी स्क्रिप्ट लिखने का एक बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ 2 लाइन में। ड्रीम इज रियलिटी एंड रियलिटी इज ड्रीम, ड्रीम इज रियलिटी एंड रियलिटी इज ड्रीम। Hmm. तो जो ड्रीम हमने लिखा है ना वो रियलिटी होती है, Yeah. और जो रियलिटी होती है वो बहुतों का Dream ड्रीम होता है. होता है, True. राइट। तो ये लिखा है किसी ने, बहुत घुटा होगा भाई, जैसे हम सबने ए सेम ही घुटा है, वो सेम घुटने के बाद हमारा अलग है इन द वेरी सेम ना। ये लिखने के भी जो बेसिक्स है वो एक ही है, बस लिखो। जस्ट स्टार्ट लाइक विनीशा Yeah. मैम, जस्ट टेक थिंग्स इनटू योर हैंड। हमारा ये बुक का खर्चा अप्रोक्सीमेट लॉकडाउन के टाइम पे भी गोज अराउंड 50,000। Hmm. सो वी मेड अ बिग एडजस्टमेंट कि हमने शादी में बाकी खर्चे कम किए, Yeah. और बुक लॉन्च के लिए सिर्फ बुक्स का ही 1000 बुक्स दोनों छापी थी, Hmm. उसका 50,000 रुपए खर्चा, नो डाउट वो तो कवर हो ही गया था। बट द पॉइंट इज, खराब हो या अच्छा हो, लिखने की शुरुआत करो, बहुत जरूरी है लिखना। क्योंकि मैंने जब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी जो एक बहुत Walter Isaacson. वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी, तो वॉल्टर आइजैक्सन ने उसमें भी लिखा है कि स्टीव जॉब इसके पीछे पड़ा था, हाँ. वॉल्टर आइजैक्सन के, कि प्लीज मीट मी अदरवाइज यू गोना लूज द रियल कंटेंट ऑफ माय लाइफ। हाँ. बिकॉज़ स्टीव जॉब वाज वेरी मच अवेयर कि उनकी लाइफ इतनी लंबी नहीं है, Correct. शॉर्ट है, तो प्लीज मेरे पास पूरी लाइफ का ले लो, मेरे एक्सपीरियंसेस ले लो और उसके ऊपर लिखना शुरू करो। एंड लकीली वॉल्टर आइजैक्सन अग्रीड, अदरवाइज वो जो बायोग्राफी मस्त स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी वो हमें ना मिलते। एंड बहुत छोटी बात है, मैं वापस रिपीट करूंगा, पहले भी बात कर चुका हूँ, कि आपके आने वाली पीढ़ी को इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने अपनी किताब में जो पहली कहानी लिखी है कि शेर का बच्चा अगर बकरियों के झुंड के साथ रहने लगता है तो क्या होता है, वो है शेर का बच्चा पर वो बकरियों जैसा हो जाता है। Yeah. समय बीतते वापस जब शेर के झुंड को मिलता है तब वो पहचान नहीं पाता कि वो यही है, तो उसको दिखाना पड़ता है। तो आपने कुछ लिखा है जो काम का है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, भले आज ना हो, आने वाले 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, अगर वो मिल गया लोगों को तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, हाँ. राइट। जैसे आज बहुत सालों पहले लिखी गई गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब आज भी लोगों की लाइफ चेंज करती है, Correct. राइट। And this ये तो लिखा गया है. हाँ हाँ, So, one thing I find so unique and in a way secluded, but also a little sad about Indian stories. हाँ, Why most of our history is considered as mythology? हाँ, हाँ, Because वो लिखी हुई नहीं है, अच्छा बोली गई है, बोली गई है. ओके, बोली गई है, जैसे हम the way we know कि लिखा हुआ है तो हमें दिखता है हाँ ना. हाँ, प्रूफ अब है, वो लिखा हुआ ही नहीं है तो एम्पिरिकल एविडेंस, exactly हाँ. empirical evidence है तो that mythology becomes fact, that becomes history. अच्छा, and लिखी हुई नहीं है तो जो विक्टर है वो अपनी हिस्ट्री लिख के जाएगा. and that is somewhere what has happened with this India ना, because इतने सारे of course I won't get into all those details कि कौन कहाँ invade करके गया, but because India has been such a big attraction हाँ, of so many emperors across the world, वो लोग आए अपना impact देके निकल गए, वाह, and somewhere India का वजूद इसलिए हिलने लगा क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज लिखी हुई नहीं थी. सो आपने जो कहा वो उसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि हिस्ट्री उसी की होती है जिसकी विक्ट्री होती है, हाँ, है ना। हिस्ट्री इज रिटन बाय द वन हु, by winners, yes, है ना। absolutely. सो जो हारा है उसकी लर्निंग और उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो कोई भी तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है ना। दैट्स व्हाई इट ऑटोमेटिकली बिकम मिथ और माइथोलॉजी, Yeah. instead of becoming a real true history. So yes, people, if you want your next generation to know your real history, start writing. बहुत मजा आया. And इसमें I would also add the way family can support it, क्योंकि I feel वो बहुत ज़्यादा important है. I know my family give me all support possible. And कहीं पे कुछ लोग अटक रहे होंगे because वो support possible नहीं है, maybe because parents come from that kind of background जहाँ पे उनको यहाँ पे growth दिखी ही नहीं है, या तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे support करना है. So I would like to add on here, just give your child
that space to explore themselves. देयर कम्स अ पॉइंट इन टाइम, एक लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे धीरे धीरे पेरेंट्स, दिस इज समथिंग आई ऑब्जर्व्ड माय ओन पेरेंट्स डूइंग, धीरे धीरे दे स्टॉप्ड टेलिंग मी व्हाट यू शुड डू एंड शुड नॉट डू. दे वर लाइक, देखो हमारे हिसाब से ऐसा है, देन यू टेक योर कॉल. Very good. So giving that, you know, child that space to explore themselves, एक तो वो. दूसरा, अगर उनको कुछ ऐसा स्पेशली राइटिंग अगर करना है, डोंट शूट देम डाउन स्ट्रेट अवे. गिव देम सम टाइम. एक क्या बोलते हैं, डील जैसे साइन करो कि इतनी मोहलत दे रहे, इतने में तुम अगर कुछ कर पा रहे हो, एटलीस्ट दिखा रहे हो कि चलो इतना प्रॉमिस है, तो then you know you also get this idea कि okay, maybe this is actually not that bad. And this is something that happened with Michael Dell also, the creator of Dell Computers. He wanted to drop out of college, but again, because degree is important and everything, his parents were very scared, and they were against it. So Michael Dell was like, okay, chalo, let me go back to college. But एक महीने में, you know, without doing anything, he was like, नहीं, I can't stop this. I have to quit. So he told them कि देखो मैं 1 साल का टाइम ले रहा हूँ. 1 साल में अगर मैंने मेरे बिजनेस को ये लेवल तक नहीं पहुंचाया ना, तो बाय डिफॉल्ट आई लीव एवरीथिंग एंड कंटिन्यू माय डिग्री. बट तो आप मुझे ये 1 साल का टाइम दो. Same goes with the story of Oyo Rooms का founder रितेश अग्रवाल. Yeah. Same, उसके से भी ऐसे ही हुआ. पिताजी को बोला कि टाइम दो. और हम शिक्षक भी ये चीज ऑब्जर्व करें, जिस बच्चे के रफ बुक के पीछे कुछ होता है ना, बहुत काम का होता है. है ना? आप करते थे कि नहीं बुक के पीछे कुछ डूडलिंग या डूडलिंग ये सब करती थी. Writing in the class not so much. अच्छा. But of course when it came to writing essays, मेरे थोड़े अलग होते थे. I had to be told by my teachers to stop writing so creatively because marks नहीं मिल रहे थे. अच्छा, वो स्ट्रक्चर चाहिए था. स्ट्रक्चर चाहिए. So they could recognize that I'm writing as a writer, as an artist, and not as an actual student. And if you are going with your book to those teacher, it would be kind of a they were of course very happy जिनसे भी मिले. But see, and this is something that even I told my students, जिनको I could see कि they have some kind of writing abilities. Same trait ये visible था in the essays that they wrote in English. वो इतना लंबा लिखते थे, they didn't know where to stop. So they go, okay, this is very good, this is fantastic, but again exam case में then they would complain कि मिस यार मार्क्स नहीं मिल रहे, या तो 10 मार्क का पेपर पीछे का छूट गया, 15 मार्क का छूट गया. So the solution to this is as teachers, teachers of course they recognize, especially literature teachers, they know a writer when they see one, because of course उन्होंने भी उतने सारे बुक्स पढ़े हुए हैं. जैसे ही they see a creative flair, the good ones, really good ones, absolutely sit back and hone them. One of the reasons I got that confidence is because one of these teachers, two of them actually, one from Ahmedabad, Beena ma'am, जिनसे आप भी मिले थे, and एक दूसरी यहाँ पे बॉम्बे में सेजल शाह मैम. अच्छा. They would kind of, you know, give me extra personal attention to correct my sentences and tell me कि अच्छा तूने ऐसे लिखा है, इसके बदले if you would have written this, so ये impact होता है. And of course उनसे भी बड़ा, the biggest credit goes to Anil Ochil sir, who also did a similar this thing with me. And धीरे धीरे I learned the first you know snippet of the art of editing by him. So जहाँ पे today when I am able to help my students is somewhere from you know what I learned from all of those. कि चलो उन्होंने मुझे ये दिया है, तो I'm just passing on that knowledge. So this podcast is for those students who would love to write simply. Yes. For those people also would love to write. And इसमें हम request parents को भी कर चुके हैं. Yes. अब request करेंगे teachers को कि please find those students who can write and push them into writing. We are blessed with good amount of chartered accountants now. We are blessed with good amount of entrepreneurs now. We actually need good writers. So whenever you blame any, you can never have enough good writers. There's always more and more goodness to add to the world, more beauty to add to the world. And when I say goodness, I don't just mean self-help books, the ones that we write. I also mean fiction. Fiction से भी कितनों की life change होती है. This was the specific question कि ये fiction लिखने से भी on कर सकते हैं. हाँ, but again that comes a little later in life, and उसमें बहुत ही ज़्यादा patience चाहिए. Same as the case with self-help. Any book जो तुम book store में बेचना चाहते हो, that is a very long term gain. उसमें पेशेंस चाहिए, एंड वो पेशेंस को फीड करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए कि जब तक वो एक्चुअली कन्वर्ट हो
You have something ताकि तुम्हारी लाइफ अटके ना. So ऐसे अनगिनत राइटर हमने देखे जिनका हम्म. मेन करियर राइटिंग नहीं था, Yeah. तो धीरे धीरे जैसे मैंने जैक कैनफील्ड की स्टोरी बताई हाँ. कि उनका टीचिंग से अर्निंग आ रहा था, बट मिलियन जो पहुंचना था ना वो टीचिंग से नहीं हो सकता था, बट वो राइटिंग से हुआ. So yes, you can become millionaire or billionaire just like J.K. Rowling with writing. But again, money should not be the Money should not, it can never, I pretty sure when J.K. Rowling, when she insisted, all those publishers who rejected, her idea was never to work or sit on millions and be one of the most famous people or the one of the most famous writers on the planet, but just to simply get the work out. That should be the goal. and it was And out, you let that work talk. out of the box था वो. हाँ. The script she prepared for Harry Potter. हैरी पॉटर, वो फिक्शन का भी बात था उस जमाने के लिए Yeah. जब उन्होंने Yeah. पर आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक हैरी पॉटर सीरीज है. Yes. Yes. सो ये आप भी हो सकते हो यार, आपका आइडिया आउट ऑफ बॉक्स है. सो कीप पेशेंस, जैसा विनीशा मैम ने कहा, राइट? And keep practicing, keep writing. The only way you can also be a better writer is only by writing more. ट्रू. 10 पेजेस फाड़ के फेंको, लेकिन वो 10 पेजेस दिखो. चंद राइटर्स जो आपको इंस्पायर करके गए, वैसे राइटर्स के नाम लेना शुरू करें प्लीज. I guess the first one would be Mitch Albom. Mitch Albom, Tuesday with Morris. Tuesdays with Morrie and 5 people you'll meet in heaven. और इसकी फिल्म भी है. फिल्म भी है. दोनों की? नहीं, एक की है ना? एक की है. हाँ, yes. Tuesday with Morrie वो. Yes. So जितने subtle tone से he's explained and just expressed such deep thoughts about life. I absolutely adore those. Wow. उससे भी पहले I guess जाएगा, not a writer, he was a publisher, Uncle Pai. अच्छा. पूरा नाम उनका अनंत पाय था. He was the one who started अमर चित्र कथा. अरे वाह. And today अगर आपकी जनरेशन वाले लोग या मेरी मम्मी के भी जनरेशन वाले एंड मेरे जनरेशन वाले, इफ वी आर इन लव विद राइटिंग एंड रीडिंग, दैट्स समवेयर बिकॉज ऑफ अंकल पाई, बिकॉज ही क्रिएटेड अमर चित्र कथा. उनके वजह से ही इतने सारे लोगों तक इतने सिंपल टोन में जाके टिंकल डाइजेस्ट एंड अमर चित्र कथा के बुक्स जाके पहुंचे. हिस्ट्री पता चली उनको, माइथोलॉजी पता चली, फन तरीके से भी सीखना कैसे है वो टिंकल ने सिखाया. So till I was 13 I did not touch a novel. I only read Tinkle Digests all the way from 5 or 6 whenever mom introduced me to Tinkle till I was 13. And वो specifically उस स्टाइल से लिखते हैं कि वो बच्चों को की vocabulary increase हो. Wow. So that is 2. Third I would say Let's take one by one. बराबर. मेरा 11th से रीडिंग शुरू हुआ. 11th में आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द एग्जामिनेशन, गांधी एग्जामिनेशन, जिसमें गांधी जी के ऊपर रीड करना था, एग्जाम देना था. और मैंने इतना पढ़ लिया, जबरदस्त पढ़ा था. फिर भी फर्स्ट प्राइज किसी लड़की को दिया गया, तो मैंने बोला हो ही नहीं सकता. मैं बोला वापस चेक करो, और वो मुझे इंसिडेंट अभी भी याद है. एक टीचर भड़कती हुई आई और बोला ये ले तू ही फर्स्ट है. So I earned 251 rupees. बालभारती कॉलेज में एक गांधी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट अभी भी मेरे पास है उसका. तो ये अच्छा लगा कि यार ये रीड करने से फिर वहां से रीडिंग बढ़ता गया. फिर जो भी अच्छे लिटरेचर थे इंग्लिश में उसको उसके ट्रांसलेशन खरीदते गया फ्रॉम आर सेठ मरीन लाइंस में. और भी अच्छी किताब अगर मुझे कोई लखी जो काम करके गई मेरे पे, वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. हाँ, जिसका गुजराती ट्रांसलेशन था जिंदगी जीवो ने काम नहीं मानो. Okay. वो बहुत मुझे अच्छी लगी. और हाँ, I love Rashmi Mansal. I have crush on her. She's nice when it comes to expressing, their stories in a very crisp and short way. But because I am also so artistic and this thing. The third one I was actually confused between two of those. I would go for Cecilia Ahern, who has written P.S. I Love You, who has written How to Fall in Love. So उनकी सारी बुक्स में there's the two common elements दिखते ही. Of course romance है. दूसरा in some or the other way there's self reflection या तो women empowerment को लेके कुछ ना कुछ होता है. And छोटे छोटे टोन में इतना emotion and so humorous. I don't think I have ever disliked a book by her. There have been books by Nicholas Sparks that
कि हाँ पढ़ा है, अच्छा लगा है, but they don't really stand out. Okay. Every book by Cecilia Ahern that I've read has always stood out for me. Superb. So that is there. Wow. I want to share about a book which changed my life, जो आगे के पॉडकास्ट में भी आप देख सकते हो, बुक के बारे में बार बार जिक्र करता हूँ जिसने मेरी लाइफ बदली। वो है कुंदनिका कापड़िया जी की सात पगला आकाश में, 7 Steps in Sky by कुंदनिका कापड़िया, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फीमेल के पहलू बताए हैं कि आप समाज के ओर से मर्द को ऐसे गिनते हो तो औरत को भी पैरेलल गिनना शुरू करो या तो ऊपर At गिनना least शुरू put करो। yourself in their shoes Choose and and think. understand। हाँ. और वो बहुत समय पहले लिखी गई थी, तो Way ahead of the time. भाई मजा आ गया वो बुक पढ़ के। तो मेरी ये चाहत है, जो हम मजे से ये सारी किताबों का जिक्र कर रहे हैं, वो एक दिन आपकी किताबों में भी कोई ऐसे ही बैठ के चर्चा कर रहा होगा और आप उससे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों कमा रहे होगा और उसका प्यार मिल रहा होगा। So yes, this podcast is again for those who love writing and reading. So let's call it a day. Thank you so very Thank much. you. So we hope के ये podcast आपको help करे Yep. to start writing. And if you're thinking of writing and need any help, Yeah. please let me know in the comments. I would be happy to guide you. God bless. God